Hello everyone. So today we will start with the coupling in amplifiers. Now coupling in amplifiers का क्या मतलब है? देखो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में we have studied the common emitter transistor amplifier. उससे पहले हमने देखा था common base transistor amplifier. ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, वहां पर हमने जो है सिंगल एम्पलीफायर को यूज किया था. सो दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. कपलिंग इन एम्पलीफायर्स का क्या मतलब है? व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर एम्पलीफायर्स टुगेदर, देन वी कैन से दैट दीज एम्पलीफायर्स आर नाउ कपल्ड. ठीक है, एंड व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जब हम यूज करते हैं तो उस केस में जो हमें वोल्टेज या पावर गेन मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता. वी रिक्वायर मोर वोल्टेज एंड पावर गेन, सो वी रिक्वायर the multi-stage amplifier instead of a single stage amplifier. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है when we join, or you can say that connect two or more single stage amplifiers together, then we get the multi stage amplifier. Now why we do this? It has already been observed, and it has observed so many times that the voltage or power gain obtained from a single stage amplifier is limited. It is not sufficient for all the practical applications. जितना हमें चाहिए उतना हमें amplification नहीं मिल पाता with the help of single stage amplifier. So in order to achieve greater voltage and power gain, we have to use more than one amplifier, or you can say that we have to use more than one stage of amplification. सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का क्या मतलब है कि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन जो है वो सिर्फ एक बार हो रही है. देयर इज ओनली वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन, सो वी हैव टू यूज मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन टू अचीव ग्रेटर वोल्टेज एंड पावर गेन. इस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, in order to achieve greater voltage and power gain, we have to use more than one stage of amplification. Such an amplifier is called a multi-stage amplifier. ठीक है, now when we use multi-stage amplifier, then what we do? We feed the output of one stage to the input of next. इसमें क्या होता है? हमने सपोज दो एम्पलीफायर्स जो है कनेक्ट करें एंड वी मेक अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. तो जो मेरा सेकंड एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट होगा वो होगा जो मेरे फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट है. ठीक है, सो इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वी फीड द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट वन. Such a connection of amplifiers is called cascading. इसको हम बोलते हैं cascading. ठीक है, a multi-stage amplifier using two or more single-stage common emitter amplifiers is called a cascade amplifier. ठीक है, and this process of or the arrangement of connecting two or more amplifiers together is known as coupling. ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे लिखा है. Now when we are using a cascade or a multi-stage amplifier, then we can say that in this arrangement, the output of first stage amplifier is used as the input of the second stage and so on. ठीक है, suppose I am using two amplifiers. तो जो मेरा first amplifier है, let's say उसका output जो है V1 है. V1 is representing the output voltage of the first stage. That means the output voltage of the first amplifier. And let's say Vi जो है, this is representing the input of the first stage. ठीक है, this is representing the input of the first stage, input voltage. So what will be the voltage gain of the first stage? Voltage gain हमारा क्या होता है? This is the ratio of output voltage to the input voltage. So let's say A1 जो है, this is the voltage gain of first stage. So that will be equal to output voltage divided by input voltage. Output voltage है मेरी V1, input voltage है मेरी Vi. So this is representing the voltage gain of the first stage.
Now we have another amplifier that is connected to this first amplifier. ये जो अब मेरा दूसरा amplifier है उसका जो input होगा that will be the output of the first amplifier. ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो मेरा second amplifier है इसकी input voltage हो गई V1 and let's say V2 इसकी output voltage है. So what will be the voltage gain of the second stage? Let it be A2. This is equal to the ratio of output to the input voltage. Output voltage है मेरी V2, input voltage है मेरी V1. So this is the voltage gain of the first stage A1. This is the voltage gain of the second stage. Here we are connecting two amplifiers together. ठीक है, so now it has become a cascade or a multi-stage amplifier. Now what will be the total voltage gain of this multi-stage amplifier? Total voltage gain मेरा क्या होगा? Let it be denoted by capital A. This is equal to जो मेरी final output आया that divided by सबसे initial जो मैंने output जो है वो provide किया था. ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा? आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज दैट मींस द V2 और हमारा इनपुट में क्या आएगा? द इनपुट वोल्टेज दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू द फर्स्ट स्टेज दैट मींस VI. ठीक है, सो द वोल्टेज गेन कैपिटल A विल बी इक्वल टू V2 अपॉन VI. इसको करेक्ट कर लो, ये VI है यहाँ पर डिनोमिनेटर में. ठीक है, ये V1 नहीं है. Now V2 upon VI को I can write as V2 upon V1 into V1 upon VI. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों में V1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ. इस एक्सप्रेशन जो है मेरी V2 upon VI इसमें मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ विद V1. So I'll get V2 upon V1 into V1 upon VI. Now what is V2 upon V1? V2 upon V1 is the voltage gain of the second stage A2 and the V1 upon VI this is the voltage gain of the first stage that is A1. तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि अगर यहाँ पर जो मेरा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है इट इज अ टू स्टेज एम्पलीफायर. यहाँ पर हमने दो एम्पलीफायर्स जो है उनको कपल किया है. ठीक है, सो इट हैज बिकम अ टू स्टेज एम्पलीफायर. तो टोटल वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है? दोनों एम्पलीफायर्स के वोल्टेज गेन को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं देन आई विल गेट द टोटल वोल्टेज गेन. ठीक है, सो इन जनरल हाउ I can write, suppose I have n stages of the amplifier coupled together. So now what will be the total voltage gain of this multi-stage amplifier? Let's say it is capital A. This will be equal to A1 is the voltage gain of the first stage. This is A2. A2 is the voltage gain of the second stage. इसको correct कर लो अपनी book में. So on. AN is representing the voltage gain of the nth state. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन अप टू वी हैव n स्टेजेस. तो हर एक के वोल्टेज गेन को इफ आई मल्टीप्लाई देन आई विल गेट द टोटल वोल्टेज गेन व्हिच इज सिंपली द आउटपुट ऑफ द फाइनल स्टेज. हियर दैट विल बी द nth स्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज. Now also if the voltage gain of each stage is same, अगर हर एक stage का voltage gain same है that means A1 is equal to A2 is equal to A3 so on equal to AN, let it be equal to A. So in that case what will be the total voltage gain? टोटल वोल्टेज गेन क्या होगा? A raised to power n, जहां पर A अब मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ ईच स्टेज. इफ आई एम सेइंग हर एक स्टेज जो है उसका वोल्टेज गेन सेम है, in that case the total voltage gain will be A raised to power n if we are using the n stage amplifier. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है. ठीक है, कितनी स्टेजेस है? अगर n स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज की वोल्टेज गेन सेम है, in that case the total voltage gain is A raised to power n where A is now representing the voltage gain of each stage. अदरवाइज अगर हर एक स्टेज का वोल्टेज गेन डिफरेंट है then total voltage gain is equal to the product of the individual voltage gain of each stages, that is A1 into A2 into A3 so on up to AN. ठीक है, अगर हर एक स्टेज की वोल्टेज गेन सेम है, if the voltage gain of each stage is same and is 20, then what will be the voltage gain of a two stage amplifier?
हमारा n क्या हो गया, 2 हो गया, a हमारा 20 है, तो दिस इज 20 raised to power 2, that is 400. If I'm using a 3-stage amplifier, then in that case the total voltage gain will be 20 raised to power 3, that is 8000 and so on. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एम्पलीफायर जो है, इफ वी आर यूजिंग अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो उस केस में अगर वोल्टेज गेन सिर्फ 20 है और अगर मैं उसके साथ बस एक और एम्पलीफायर को ऐड कर दूं, देन इन दैट केस मेरा वोल्टेज गेन कितना हो जाता है, इट बिकम्स 400. और अगर मैं एक और एम्पलीफायर ऐड कर दूं, इफ आई मेक इट अ 3-स्टेज एम्पलीफायर, देन इन दैट केस मेरा जो वोल्टेज गेन है वो 8000 हो जाता है. ठीक है, सो देयर इज सो मच ऑफ इंक्रीज इन वोल्टेज गेन बाय कपलिंग 2 or more amplifiers together. Now the block diagram of the multi-stage amplifier is shown in this figure. ठीक है, this is our input voltage that we are feeding to the first stage. Then I get the output. This output will become the input of this A2 amplifier. Now the output of this A2 amplifier will become the input of the A3 amplifier and so on. And finally we receive the output voltage. So here what will be the total voltage gain? That will be V naught divided by Vi. Okay, so this is the total voltage gain of this multi-stage amplifier. The ratio of output voltage to the input voltage. Here the output voltage is the voltage that we receive from the last stage divided by the input of the first stage or the input voltage of the first stage. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम जो वोल्टेज गेन है उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस. ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या लग रहा है, that we may get as large voltage gain as we like by using large number of stages, but in actual practice we cannot do so. क्यों? यहाँ पर हमें ये चीज पता चली, हमने ये एग्जाम्पल भी देखा कि जैसे जैसे हम स्टेजेस जो हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा वोल्टेज गेन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि we can get as large voltage gain as we like by using the large number of stages, but actual practice में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो हमें required output है हमारा सिर्फ वही, suppose हमें voltage को amplify करना है, so we are using large number of stages. तो हर एक स्टेज पे हमारा सिर्फ वोल्टेज गेन ही नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है, नॉइस भी बढ़ रही है. जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं, जो हमारी अनवांटेड जो हमारी नॉइस है वो भी बढ़ रही है. इट इज ऑल्सो एम्पलीफाइंग with increase in the number of stages. As we move from the first to the second stage, second to the third stage, हमारा सिर्फ voltage gain ही नहीं बढ़ रहा, जो हमारी unwanted signals हैं वो भी amplify हो रहे हैं. ठीक है, so in actual practice हम जो multi stage amplifier use करते हैं उसमें हम जो है सिर्फ maximum 3 stages का ही use करते हैं. We usually use only 2 or 3 stages to form a multi stage amplifier. ठीक है, हम बहुत ज्यादा स्टेजेस जो हैं वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम जितनी ज्यादा स्टेजेस यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा जो है नॉइस जो है वो भी एम्पलीफाई होती जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कपलिंग इन एम्पलीफायर्स. इसमें सिर्फ इतना बताया है, वर्किंग हमने स्टडी करी थी विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. फिर उसके बाद हमने बताया जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स हैं हमारे, उसमें हमें वोल्टेज गेन जो है इतना ज्यादा नहीं मिलता, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो व्हाट वी नीड द मोर वोल्टेज गेन. सो फॉर दिस व्हाट वी डू, वी कपल द एम्पलीफायर्स, वी कनेक्ट 2 or more than 2 amplifiers together. Such an amplifier is called the cascade amplifier or the multi-stage amplifier. ठीक है, और ये जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है इसका वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज गेन ऑफ ईच stages. ठीक है, that is equal to V naught upon Vi, the final output voltage to the initial input voltage. और यहाँ पे हमने ये चीज भी देखी कि हम
जितने ज्यादा स्टेजेस हो उतनी ज्यादा स्टेजेस यूज नहीं कर सकते. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस. व्हाई? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा स्टेजेस यूज करेंगे देन इन दैट केस हर एक स्टेज के साथ हमारा जो नॉइस है इट विल आल्सो गेट एम्पलीफाइड विद द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. वोल्टेज एम्पलीफिकेशन तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी नॉइस है, जो हमारे अनवांटेड सिग्नल्स हैं, दे आर आल्सो एम्पलीफाइंग व्हिच वी डू नॉट रिक्वायर. ठीक है, सो व्हाट वी डू इन एक्चुअल प्रैक्टिस, वी usually use only 2 or 3 stages to couple a amplifier. ठीक है, हम कैसा एम्पलीफायर यूज करते हैं, कैसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं, इन विच वी यूज only 2 or 3 stages. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हाउ टू मेजर द वोल्टेज गेन. यूजुअली जो वोल्टेज गेन है उसको मेजर किया जाता है इन द यूनिट्स ऑफ डेसिबल. द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन or the voltage gain of the amplifier, it may also be expressed in decibels. Decibels को हम कैसे डिनोट करते हैं, dB. ठीक है, why do we use or why do we measure the voltage gain of amplifier in this decibel unit, ये भी हम आगे देखेंगे. Like what is the advantage of using decibels to measure the voltage gain. ठीक है, तो gain जो है amplifier का it is measured in this unit and where 1 dB is equal to 1 by 10 of a bell. Bell को we denote by capital B. इसका मतलब क्या है, 1 decibel is equal to 1/10 of a bell. That means 1 bell is equal to 10 dB or 1 B is equal to 10 dB. ठीक है, नाउ हमारे जो नंबर ऑफ बेल्स होते हैं दैट इज गिवन बाय log टू द बेस 10 ऑफ P2 अपॉन P1. इसका मतलब क्या है, बेल हमारा क्या होता है, बेसिकली ये हमारी एक लोगैरिथमिक यूनिट होती है ऑफ बेस 10. दिस इज अ लोगैरिथमिक यूनिट ऑफ बेस 10. ठीक है, ऑफ मेजरमेंट दैट हैज नो यूनिट्स. किसका लोगैरिथमिक यूनिट लेते हैं, ऑफ मेजरमेंट दैट हैज नो यूनिट्स. अब यहाँ पर जो हमारा P2 अपॉन P1 है, P2 इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट पावर, P1 इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट पावर, तो दोनों की यूनिट सेम है. ठीक है, सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर, लोगैरिथमिक यूनिट है ये किसकी, ऑफ द मेजरमेंट दैट हैज नो यूनिट्स. P2 upon P1 की कोई यूनिट नहीं है. दिस इज सिंपली द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर. ठीक है, और जो लोगैरिथमिक हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ द बेस 10. ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक तरीके से द नंबर ऑफ बेल्स. ठीक है, सो व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन इन डीपी. ठीक है, वोल्टेज गेन हमारा क्या होगा इन डेसिबल, वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा 1 बेल क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल. इसका मतलब क्या है, देयर आर 10 डेसिबल्स पर बेल. इसका मतलब क्या है, देयर आर 10 डेसिबल्स पर बेल. एक बेल में हमारे पास 10 डेसिबल्स है. यहाँ पे नंबर ऑफ बेल्स कितने हैं हमारे, log टू द बेस 10 ऑफ P2 अपॉन P1. तो वोल्टेज गेन डेसिबल में हम कैसे लिख सकते हैं, B इंटू 10 डेसिबल. ठीक है, अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे अगर मैं ऐसे नहीं लिख रही 1B, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसको बस यहाँ पर देखो, अगर मैं नंबर ऑफ बेल्स जो है लेट्स से मैं उसको कैपिटल B से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बेल्स इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ P2 अपॉन P1. एक बेल जो है मेरा दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स, मतलब देयर आर 10 डेसिबल्स पर बेल. एक बेल में 10 डेसिबल्स होते हैं, नंबर ऑफ बेल्स मेरे इतने हैं. ठीक है, तो मेरा वोल्टेज गेन क्या होगा डेसिबल में, डेसिबल में वोल्टेज गेन क्या होगा मेरा 10 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ P2 अपॉन P1. ठीक है, सो दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स. तो अब जो है मैंने वोल्टेज गेन को लिख लिया इन डेसिबल्स. दिस इज नॉट वोल्टेज गेन, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे इसमें गलतियां इतनी है ना, बोलते टाइम मैं भी गलती कर देती हूँ. दिस इज पावर गेन. पावर गेन इन डेसिबल्स इज 10 into log 10 P2 upon P1. I hope ये सबको क्लियर है. पावर गेन इन जनरल क्या होता है, द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर P2 अपॉन P1. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पावर गेन, आगे हम वोल्टेज गेन और करंट गेन इनको भी लिखेंगे इन डेसिबल यूनिट.
अब हम जो पावर गेन वोल्टेज गेन अब तक पढ़ के आए हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं डेसिबल यूनिट में लिखना। क्यों, ये हम आगे देखेंगे। व्हाई वी आर यूजिंग दिस यूनिट ऑफ डेसिबल इन मेजरिंग द वोल्टेज गेन और द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर हमें बस इतना देखना है दैट हाउ वी कैन राइट द पावर गेन और द वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स। उसको वी कैन राइट एज 10 log 10 P2 upon P1। log 10 into P2 upon P1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ बेल्स। एक बेल में मेरे पास कितने डेसिबल है, 10। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं देन आई विल गेट द पावर गेन इन डेसिबल्स। सो दिस इज इक्वल टू 10 log 10 P2 upon P1। ये मेरे को मिल गया पावर गेन। नाउ आई वांट टू राइट द वोल्टेज गेन इन डेसिबल। तो उसके लिए मैं पावर को वोल्टेज के टर्म्स में लिखूंगी। मुझे पता है पावर जो है हमारी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो P2 को आई कैन राइट एज V नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट। P2 इज द आउटपुट पावर, V नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज, आर नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। P1 मेरा है इनपुट पावर, दिस इज इक्वल टू VI स्क्वायर अपॉन RI, where VI is representing the input voltage, RI is representing the input resistance or the input impedance। ठीक है, if R naught is equal to Ri, that means if I am saying that the input and output impedance or the resistance of the amplifier are equal, then in that case, what will be left with 10 into log 10 V naught upon Vi का whole square, ये 2 मेरा बाहर आ जाएगा, तो it will become 20 log 10 V naught upon Vi। Now what is V naught? The output voltage. Vi is the input voltage. So what is the ratio of output voltage to the input voltage? It is the voltage gain. So now I can write this equation as 20 into log to the base 10 of voltage gain. So this is now representing the voltage gain in decibels। ठीक है, नॉर्मली जो मेरा वोल्टेज गेन है वो है V नॉट अपॉन VI। इन डेसिबल्स इट कैन बी रिटन एज 20 into log to the base 10 of the voltage gain। सिमिलरली पावर गेन इन डेसिबल्स हो जाता है 10 into log to the base 10 of P2 upon P1। ठीक है, यहाँ पर 10 आता है, यहाँ पर 20 आता है। ऐसे ही अगर मैं करंट गेन लिखूं डेसिबल में, पावर मेरी करंट के टर्म्स में क्या होती है, I स्क्वायर R। तो P2 मेरा क्या हो गया, I नॉट स्क्वायर इंटू R नॉट। PI मेरा क्या हो गया, I with a subscript small I square into Ri। If R naught is equal to Ri, resistances will cancel out and I'll get 20 into log 10 bracket में output current to the input current। तो that means current gain in decibel क्या होता है, 20 into log to the base 10 of the current gain। सेम वोल्टेज गेन की तरह ही है, बस यहाँ वोल्टेज की जगह करंट गेन आ जाएगा। पावर में यहाँ पर 10 का मल्टीप्लीकेशन आता है, वोल्टेज और करंट में 20 का प्रोडक्ट आता है। क्यों, बिकॉज पावर जो है दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और यू कैन से I स्क्वायर R। तो ये 2 का फैक्टर वोल्टेज गेन और करंट गेन में इस वजह से आता है। सो पावर गेन इन डेसिबल्स इज दिस, इस फॉर्मूले को याद रखना है। वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स इज this। ठीक है, so if I am saying that voltage gain is 10, then what will be the voltage gain in decibels? Log to the base 10 of 10 मेरा कितना होता है, 1। so मेरा voltage gain in the units of decibel क्या आ गया, 20। so if voltage gain is 10 then the gain in decibel will be 20। और ये जो हमने derivation किया है, here we have made the assumption that the input and output impedance of the amplifier are equal। That means we are considering R naught is equal to Ri। Next, how we can write the gain of multi-stage amplifier in decibel। मल्टी-स्टेज एम्पलीफायर का गेन हम किस तरीके से लिख सकते हैं इन द यूनिट्स ऑफ डेसिबल। इन जनरल जो हमारा वोल्टेज गेन होता है फॉर अ मल्टी-स्टेज एम्पलीफायर वो क्या होता है, A is equal to A1 into A2 into A3 so on into AN। अब अगर मैं दोनों साइड
if we take logarithm to the base 10 of this equation and then multiply each term by 20, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगी? अगर दोनों साइड में log to the base 10 ले लूं तो मेरा लेफ्ट साइड क्या होगा? log to the base 10 of a. राइट हैंड साइड मेरी क्या हो गई? log to the base 10 of this whole term. और log a into b को मैं कैसे लिख सकती हूँ? log a plus log b. सिमिलरली यहाँ log of this whole term को मैं कैसे लिख सकती हूँ? log of a1 plus log of a2 plus log of a3 so on plus log of an. यहाँ log मेरा है to the base 10 और फिर मैं दोनों साइड्स 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 20 into log 10a is equal to, एडिशन में है सारे लॉग, तो 20 से जब मल्टीप्लाई करूंगी हर एक टर्म में 20 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. सो इट विल बिकम 20 into log 10a1 plus 20 into log 10a2 so on plus 20 into log 10an. ठीक है, तो दिस इज आवर gain of multi-stage amplifier in decibel. In general, we write A is equal to A1 into A2 into A3 so on up to AN. I hope ये स्टेप सबको क्लियर है यहाँ से कैसे आया. अगर नहीं क्लियर है तो खुद से एक बार करके देखो अपनी नोटबुक में, ये क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले दोनों साइड्स लॉग लो. लॉग लेने के बाद एक इक्वेशन आएगी, log a is equal to log a1 plus log a2 plus log a3 so on up to log an. अब दोनों साइड्स 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस इक्वेशन. 20 log a is equal to 20 log a1 plus 20 log a2 plus 20 log a3 so on plus 20 log an. अब जितनी भी हमारी स्टेजेस होंगी उस हिसाब से हमारी ये इक्वेशन ट्रंकेट हो जाएगी. इफ वी आर यूजिंग अ 2 स्टेज एम्पलीफायर तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वोल्टेज गेन की डेसिबल? 20 log a1 plus 20 log a2. So in this equation, the term on the left hand side is representing the overall gain of the multi-stage amplifier in decibel. ये मेरा क्या है? This is representing the gain in decibel. And the term on the right hand side denote the gains of individual stages expressed in decibel. 20 into log a1 क्या है? This is the gain of the first stage in decibel. This is the gain of the second stage in decibel. और यहाँ पे हम कौन से गेन की बात कर रहे हैं? The voltage gain. करंट गेन के लिए भी यही इक्वेशन आएगी. पावर गेन के लिए 20 की जगह पूरी इक्वेशन में 10 आ जाएगा, रेस्ट हमारा सेम रहेगा. Thus, overall voltage gain in decibel of a multi-stage amplifier is the sum of decibel voltage gains of the individual stage. That means A dB क्या represent कर रहा है? This is the voltage gain of the multi-stage amplifier in decibel. This is equal to the sum of individual voltage gains of the each stages in decibel. AdB1 क्या है हमारा? This is the voltage gain of the first stage in decibel. This is the voltage gain of the second stage in decibel and so on. ठीक है. Now, अब यहाँ पे हम ये कहते हैं why we are using this unit, why we are measuring voltage gain in the decibel unit. First advantage is it permits gains to be directly added when a number of stages are cascaded. जब हम बहुत सारी स्टेजेस को एक साथ ज्वाइन करते हैं, देन उस केस में जब हम उसका वोल्टेज गेन निकालना है या करंट गेन या पावर गेन, तो डेसिबल यूनिट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस केस में हमें जो वोल्टेज गेन या करंट गेन या पावर गेन है उनको डायरेक्टली ऐड करना है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग. अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और ऐड करके लिखते हैं उसमें हमारे पास फर्क आता है. प्रोडक्ट जो है हमारा वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द एडिशन. बस फर्स्ट एडवांटेज तो सिंपल से एडवांटेज है, इट परमिट्स गेन्स टू बी डायरेक्टली एडेड व्हेन वी यूज अ नंबर ऑफ, व्हेन वी कपलिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस टू फॉर्म अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. सेकेंड, व्हाट डज इट से? जो हम ऐड कर रहे हैं वो हम किसको ऐड कर रहे हैं? लॉग को ऐड कर रहे हैं ना, हर एक वोल्टेज गेन के लॉग को. log 10a1, log 10a2. ठीक है, तो अब हम सब वोल्टेज गेन्स का लॉग निकाल रहे हैं.
तो ये लॉग निकालना जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों? इस लॉग की वजह से जो है वी गेट अ मोर कन्वीनियंट स्केल। कैसे मिलता है देखो, it permits us to denote both very small as well as very large quantities of linear scale by conveniently small figures। अगर हमारे पास सपोज ये जो A1 है, A2 है, A3 so on AN जो है, ये जो है मेरे पास अगर बहुत स्मॉल आए या बहुत ज्यादा आए, तो जब मैं इनका लॉग लूंगी तो आई विल गेट अ मोर कन्वीनियंटली स्मॉल फिगर। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑफ यूजिंग दिस यूनिट। इट गिव्स अस अ मोर कन्वीनियंट स्केल, इट प्रोवाइड्स अ मोर कन्वीनियंट स्केल। कैसे? देखो यहाँ एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास वोल्टेज गेन इतना है और यू कैन से वोल्टेज लॉस इतना है, फ्रैक्शन में है, दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज गेन यहाँ पर लिखा है वो 0.000001 लिखा है। इसका मतलब जो हमारा दिस इज नॉट अ वोल्टेज गेन, दिस इज अ वोल्टेज लॉस। जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी दैट इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज। तो इसको अगर मैं लिखूंगी इन डेसिबल्स तो आई विल गेट अ वोल्टेज गेन ऑफ -120 डेसिबल। माइनस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज लॉस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ पावर गेन इतना है, तो जब मैं इसको लिखूंगी इन डेसिबल्स, पावर गेन क्या होता है डेसिबल्स में 10 into log of P2 upon P1, P2 upon P1 is this। तो जब मैं इसका पावर गेन लूंगी इन डेसिबल्स आई विल गेट 56.59 और 56.6 डेसिबल ऑन लोगैरिथमिक स्केल। तो यहाँ पर तुम देखो इसको लिखना जो है, इसको मैंने कितना कन्वीनियंटली लिख दिया, सिंपली -120 डेसिबल्स विच इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज लॉस ऑफ 120 डेसिबल और द वोल्टेज गेन ऑफ -120 डेसिबल। और ये इतनी लार्ज क्वांटिटी है पावर गेन की, उसको मैंने कितना कन्वीनियंटली लिखा, सिर्फ 56 डेसिबल्स ऑन लोगैरिथमिक स्केल। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस यूनिट डेसिबल फॉर द gain of the amplifier, it provides a more convenient scale। ठीक है, next what does it say? यूजुअली हम जो एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, जो उनका आउटपुट होता है उसको हम साउंड में कन्वर्ट करते हैं। साउंड कौन रिसीव करता है? साउंड इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। हम लोग जो है ईयर कहाँ से करते हैं? ईयर से ही करते हैं ना। तो साउंड जो होती है दैट इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। और जो हमारे ईयर्स होते हैं, ह्यूमन ईयर जो होते हैं, दे बेसिकली रिस्पॉन्ड टू द साउंड इंटेंसिटीज ऑन अ लोगैरिथमिक स्केल रादर देन ऑन लीनियर स्केल। तो अगर हम लेट्स से हम जो ऑडियो पावर है वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 watt to 64 watt, then the hearing loss does not increase by 16। अगर मैं कहती हूँ कि जो ऑडियो पावर है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 watt to 64 watt, तो इस केस में हमारा जो हियरिंग लेवल है वो 16 टाइम्स नहीं बढ़ता, इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3। वाई? क्योंकि जो हमारे ह्यूमन ईयर होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द साउंड इंटेंसिटीज ऑन अ लोगैरिथमिक स्केल। अगर इनिशियली मेरे पास पावर कितनी थी 4, फाइनली कितनी हो गई 64। अगर मैं उसको लॉग के फॉर्म में लिखूं तो मतलब इनिशियली मेरे पास पावर कितनी थी? इनिशियली मेरे पास पावर थी लॉग 4। ठीक है, अब मेरी कितनी बढ़ गई? अब ये हो गई log 64। ठीक है, log 64 को आई कैन राइट एज 4 क्यूब। तो मतलब ये क्या हो गया? log ऑफ 4 क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 log 4। ठीक है, तो मेरा जो ऑडियो पावर है ये कहां से कहां तक इंक्रीज हुई? इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 watt to 64 watt। जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ईयर का, it will increase by a factor of 3। initially log 4 था, बाद में हो गया 3 log 4, so it is increased by a factor of 3। क्योंकि जो हमारे ह्यूमन ईयर होते हैं they respond to the sound intensities on a logarithmic scale rather than on a linear scale।
और जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं उनका जो यूजुअली जो हमें आउटपुट होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं साउंड में। साउंड हम कौन रिसीव कर रहा है? ह्यूमन ईयर। और ह्यूमन ईयर हमारे कब रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू दी साउंड इंटेंसिटीज ऑन लोगैरिथमिक स्केल। सो वी रिक्वायर अ लोगैरिथमिक स्केल। इसलिए और जो हम गेन निकाल रहे हैं अब एम्पलीफायर का इन डेसिबल्स, वहां पे हम लोगैरिथमिक स्केल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, log टू द बेस 10 का हम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वी बेसिकली यूज or we basically measure the voltage gain of amplifier in decibel. These are the three main reasons why we use decibel to measure or to express the voltage gain or power gain or current gain of a amplifier. पहला advantage है we have to only add the terms instead of multiplying. Second, the most advantageous, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारा गेन जो है वो बहुत स्मॉल या बहुत ज्यादा है तो उसका जब हम लॉग लेते हैं तो हम उसको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंटली लिख पाते हैं। वी गेट अ वेरी कन्वीनियंट फिगर्स if we have a very small or a very large quantity of the gain on linear scale. We can write it more conveniently using the logarithmic scale. So it provides a more convenient scale. थर्ड थिंग इट सेज दैट जो एम्पलीफायर का आउटपुट होता है उसको फाइनली हम यूजुअली साउंड में कन्वर्ट करते हैं और साउंड जो है हमारा ह्यूमन ईयर रिसीव करता है। और ह्यूमन ईयर्स क्या होते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू साउंड इंटेंसिटीज ऑन लोगैरिथमिक स्केल रादर देन ऑन लीनियर स्केल। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई वी measure the voltage gain, power gain or current gain, or you can say any gain of the amplifier in the decibel unit. ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में इतना ही करना काफी है। यू शुड नो व्हाट इज कपलिंग इन एम्पलीफायर्स, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को जब हम मिला देते हैं, कपल कर देते हैं, तो वी गेट अ कपल्ड एम्पलीफायर जिसको हम कैस्केड और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। वोल्टेज गेन निकालना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का बहुत सिंपल है, सिंपली प्रोडक्ट है इंडिविजुअल स्टेजेस के वोल्टेज गेन का। नेक्स्ट उसके बाद हमने वोल्टेज गेन, पावर गेन और करंट गेन को लिखा इन द यूनिट्स ऑफ डेसिबल। ठीक है, क्यों लिखा वो आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिए रीजंस। कैसे लिखा? बाय यूजिंग दिस थिंग, जो हमारे नंबर ऑफ बेल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ P2 अपॉन P1, और वन बेल हमारा क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो यहाँ से वी कैन राइट द गेन इन डेसिबल एज 10 into this log to the base 10 of P2 upon P1, that means B into 10 decibel। अगर मैं इसको B consider कर रही हूँ, the number of bells को if I am denoting by B, then I can write the gain in decibel as, this is not voltage gain, this is the power gain. I can write the power gain in decibel as, क्योंकि हम P2 upon P1 ले रहे हैं ना, that is representing the power gain. तो power gain in decibel को I can write as B, the number of bells into 10 decibel. Why? Because one bell is equal to 10 decibel, मतलब there are 10 decibels per bell. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पावर गेन आ गया, वोल्टेज गेन आ गया। उसके बाद हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के गेन जो है उसको हमने डेसिबल्स में लिख दिया, फिर एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस कर दिए। अब ये लास्ट चीज हम देखेंगे आज, द वेरियस मेथड्स ऑफ कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर्स। नो व्हेन वी कपल द एम्पलीफायर्स हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग अ कपलिंग प्रोसेस इन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देयर शुड बी मिनिमम लॉस ऑफ द वोल्टेज व्हेन द आउटपुट सिग्नल ऑफ वन स्टेज पासेस टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। एक स्टेज का जो आउटपुट होता है दैट इज फेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। तो हमें इस तरीके से फेड करना है इनपुट को, पहले वाले के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में इस तरीके से फेड करना है दैट देयर शुड बी द मिनिमम लॉस ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, दूसरा, the DC voltage of one stage should not be allowed to pass to the second stage। ये तुम अभी देखोगे आगे जब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को, जहां पर हम दो या दो से यहाँ पर हम दो यूज करेंगे। जब हम दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को कपल करते हैं
टू मेक अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तो वहां पर हम उसको कपल इस तरीके से करते हैं कि जो पहली स्टेज का डीसी वोल्टेज है इट शुड नॉट बी अलाउड टू पास टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, डीसी को रोक दे, एसी कंपोनेंट को जाने दे, दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। तो ये तुम आगे देखोगे कि हम दोनों एम्पलीफायर्स जो है उसको कपल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी को नहीं जाने देगा, पहले का जो आउटपुट है उसमें जो डीसी कंपोनेंट है उसको जाने नहीं देगा दूसरी स्टेज के इनपुट में, ठीक है, और एसी कंपोनेंट को जाने देगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट अलाउइंग द डीसी वोल्टेज ऑफ वन स्टेज टू पास टू द नेक्स्ट स्टेज, because it is very necessary to prevent the shifting of the operating point। जो एम्पलीफायर है हमारा, और जो कैन से जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको हम बायस करते हैं, ठीक है। यूजुअली वी यूज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। बायसिंग हम क्यों करते हैं, टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हर एक ट्रांजिस्टर जो है हमारा इट इज ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट एट विच द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स, ठीक है। तो हर एक ट्रांजिस्टर जो है उसका एक ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो अगर हम उसके डीसी वोल्टेज को डिस्टर्ब करते हैं तो हम उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को भी शिफ्ट कर रहे हैं। सो व्हाट वी रिक्वायर कि हम दो एम्पलीफायर्स को इस तरीके से कपल करें कि जो उसका डीसी कंपोनेंट है पहली वाली स्टेज का, वो जो है दूसरी वाली स्टेज में ना जाए। Why? To prevent the shifting of the operating point. So in order to couple the amplifiers, these 2 points should be kept in mind, ठीक है। Next, what are the commonly used methods of coupling of various stages? The resistance capacitance coupling, transformer coupling and direct coupling। इसमें से जो है we'll do the first method of coupling in detail, that is the resistance capacitance coupling, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, हम कपल करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, नाउ we'll proceed from the single stage to the multi stage amplifier। और हम देखेंगे यूजुअली जो है there are 3 common methods of coupling of various stages, the resistance capacitance, the transformer and the direct coupling। हमारे सिलेबस में क्या है, the resistance capacitance coupling। तो नेक्स्ट क्लास में जो है we'll start with the resistance capacitance coupling which is also known as the RC coupled amplifier। जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये हम कल इन डिटेल देखेंगे। दिस इज अ 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। 2 स्टेज क्यों है, देखो यहाँ पर हम कितने एम्पलीफायर्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वी आर यूजिंग 2 एम्पलीफायर्स। ये हमारा एक एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा एम्पलीफायर है। इसको हमने कपल कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर सीसी, ठीक है। And what we get, this amplifier is known as the RC coupled amplifier। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे in the next class। आज हमने क्या देखा, what is coupling in amplifiers, how we can express the gain of the amplifier in decibel, why we use this unit of decibel in expressing the gain of the amplifier। Next हमने देखा what points we should keep in our mind to couple the amplifiers to make a multi-stage amplifier। Next we saw that there are 3 different methods of coupling the various stages, the resistance capacitance, transformer and the direct coupling। Now in the next class we'll start with the resistance capacitance coupling, or we will study the RC coupled amplifier।